کسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک سمندر کے کنارے ایک ماہی گیر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ اس کے 9 بچے تھے۔ وہ ہر روز صبح سویرے سمندر کے کنارے پر جاتا اور مچھلیاں پکڑ کر بازار میں بیچ آتا، اور ان کے اسے جو پیسے ملتے ان سے اس کا گزارا بڑی مشکل سے چلتا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ وہ ہر روز صبح سویرے سمندر کے کنارے جاتا، جال ڈالتا اور گھنٹوں انتظار کرتا، لیکن اس کے جال میں کوئی مچھلی نہ آتی، اور شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آ جاتا۔ اس کے بیوی بچے بیچارے بھوکے ہی سو جاتے۔ ایک دن وہ ایسے ہی خالی ہاتھ اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں اسے نان بائی کی دکان نظر آئی۔ نان بائی تازہ تازہ تندور پر روٹیاں بنا رہا تھا۔ عبداللہ وہیں پر کھڑا ہو گیا اور نان بائی کی طرف دیکھنے لگا۔ جب نان بائی کی نظر اس پر پڑی تو وہ عبداللہ کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ اسے روٹی چاہیے، اور وہ عبداللہ کو جانتا تھا۔ وہ نرمی اور محبت سے کہنے لگا کہ عبداللہ اندر آ جاؤ، تمہیں روٹیاں چاہیے تو تم لے جاؤ۔ عبداللہ نے جب یہ سنا تو عبداللہ نے کہا کہ میرے بھائی تمہاری محبت کا بہت شکریہ، لیکن میرے پاس روٹیوں کے پیسے نہیں۔ نان بائی نے عبداللہ سے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم روٹیاں لے جاؤ اور پیسے بعد میں دے دینا۔ عبداللہ نے نان بائی کا شکریہ ادا کیا اور روٹیاں لے کر گھر واپس چلا گیا۔ اب عبداللہ ہر روز نان بائی سے روٹیاں لے جاتا اور ان سے وہ اور اس کے بیوی بچے پیٹ بھر لیتے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ آخر ایک دن عبداللہ کو خیال آیا کہ ایسے کیسے دن گزریں گے، میں ہر روز سمندر پر جاتا ہوں، جال ڈالتا ہوں، لیکن ایک بھی مچھلی ہاتھ میں نہیں آتی کہ جسے میں بیچ کر اپنا گزر بسر کر سکوں۔ سمندر میں مچھلیوں کی کمی نہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میرے ہی جال میں مچھلی نہیں آتی۔ ایک دن وہ ہر روز کی طرح صبح سویرے سمندر کے کنارے گیا، جال ڈالا، اور وہ بہت اداس اور پریشان تھا اور نا امید بھی کہ ہر روز کی طرح اسے آج بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اچانک جال میں حرکت ہوئی کہ جیسے اس میں کوئی مچھلی پھنس گئی ہو۔ عبداللہ نے جب جال پکڑ کر کھینچا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بہت بڑی مچھلی اس میں پھنس گئی ہو۔ عبداللہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا کہ آج میری قسمت نے ساتھ دیا ہے اور کوئی بہت بڑی مچھلی میرے ہاتھ آئے گی۔ عبداللہ نے زور لگا کر جال کو کنارے پر کھینچ لیا، اور جب جال باہر آیا تو وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا، کیونکہ اس کے جال میں ایک عجیب و غریب مخلوق تھی، کیونکہ اس کا آدھا جسم تو انسانوں کی طرح تھا اور آدھا حصہ مچھلی کا۔ وہ انسانوں کی طرح بات کر رہا تھا۔ اس نے عبداللہ سے کہا کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو اور مجھے سمندر میں جانے دو۔ عبداللہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم سمندر میں کیسے آئے؟ کس نے تمہیں سمندر میں ڈالا؟ اس آدمی نے عبداللہ کو جواب دیا کہ میرا نام عبداللہ دریائی ہے، میں سمندر ہی میں رہتا ہوں، مجھے کسی نے سمندر میں نہیں ڈالا۔ عبداللہ حیران ہو کر بولا، بڑی عجیب بات ہے، میرا نام بھی عبداللہ ہے، خیر میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تم واپس سمندر میں چلے جاؤ۔ عبداللہ نے جال ڈھیلا کر دیا اور عبداللہ دریائی آزاد ہو گیا۔ وہ عبداللہ سے کہنے لگا کہ عبداللہ زمینی، تم بڑے نیک آدمی ہو، تم ذرا ٹھہرو اور میرا انتظار کرو۔ عبداللہ دریائی نے سمندر میں غوطہ لگایا، اور کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ سمندر کی سطح پر پھر سے ابھرا، اور اس کے ہاتھوں میں کچھ ہیرے اور موتی تھے۔ وہ یہ ہیرے موتی ماہی گیر کو دیتے ہوئے بولا، تم اسے لے لو، میرے پاس انہیں ڈالنے کے لیے کوئی تھیلا یا کوئی برتن نہیں تھا، ورنہ میں تمہارے لیے اور بھی لے آتا۔ عبداللہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسا معجزہ ہے، میں نے تو ایسے موتی کبھی نہیں دیکھے۔ عبداللہ دریائی تمہارا بہت بہت شکریہ۔ عبداللہ دریائی سمندر میں واپس چلا گیا، اور عبداللہ زمینی ہیرے اور موتی اپنی مٹھی میں دبا کر دوڑتا ہوا نان بائی کی دکان پر پہنچا۔ وہ خوشی سے نان بائی کو بتانے لگا کہ آج میں بہت خوش ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے آج میری سن لی، آج اللہ نے مجھے بہت سی دولت دی ہے، اور تم نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، یہ لو، ان میں سے تم بھی کچھ موتی رکھ لو۔ اور اس رات عبداللہ کے گھر میں اس کے بچوں کے کھانے کے لیے صرف نان بائی کی روٹیاں نہیں تھی، بلکہ اور بھی بہت سے کھانے تھے، جن میں اچار، گوشت اور پھل وغیرہ شامل تھے۔ ایک دن عبداللہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسے عبداللہ دریائی کی یاد آئی، اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں عبداللہ دریائی کو کوئی تحفہ دوں۔ تو اس نے ایک پھل فروٹوں سے بھری ہوئی ٹوکری کو لیا اور بازار سے اسے بھر لایا، اور اسے لے کر سمندر کی طرف چل پڑا، تاکہ عبداللہ دریائی کے تحفے کے بدلے میں اسے پھلوں کا تحفہ پیش کرے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ جب عبداللہ سمندر کے کنارے پر پہنچا تو اونچی آواز میں پکارا، عبداللہ دریائی، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ یہ سن کر عبداللہ دریائی نے سمندر میں سے اپنا سر نکالا اور ماہی گیر کو دیکھ کر بولا کہ عبداللہ بھائی کیا بات ہے؟ عبداللہ زمینی نے اس کی طرف پھلوں کی ٹوکری بڑھائی کہ یہ لو، یہ تحفہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔
अब्दुल्ला दरियाई ने वो टोकरी अपने हाथों में उठा ली और हैरान होकर टोकरी में रखे हुए फलों को देखने लगा कि वाह, क्या ही तरोताज़ा फल हैं। सेब, केले, अंगूर, अनार, क्या ही खूबसूरत तोहफा है। उसने अब्दुल्ला ज़मीनी का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि अब्दुल्ला, मैं जानता हूँ कि तुम कितने परेशान हो। तुम कुछ देर यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं जरा अभी आता हूँ। अब्दुल्ला दरियाई टोकरी लेकर समंदर में चला गया। कुछ देर बाद जब वापस आया तो ये टोकरी बहुत से मोतियों से भरी हुई थी। उसने अब्दुल्ला को टोकरी देते हुए कहा कि मेरे भाई, ये सब तोहफे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हैं, इन्हें कबूल करो और इन्हें ले जाओ। अब्दुल्ला ज़मीनी ने टोकरी में रखे हुए मोतियों पर नजर डाली तो कहने लगा, अरे भाई, इतने सारे मोती। अब्दुल्ला दरियाई बोला कि मेरे पास ऐसे बहुत से मोती हैं, तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ और अपनी ज़रूरत को पूरा करो। अब्दुल्ला ज़मीनी ने अपने हम नाम अपने दोस्त का तोहफा कबूल कर लिया और फिर से वो टोकरी लेकर नान बाई की दुकान पर पहुंच गया और इस बार उसने नेकदिल नान बाई को 3 मुट्ठी भर कर मोती दिए और बाकी मोतियों को घर ले गया। जब कुछ अरसा गुजर गया तो अब्दुल्ला ज़मीनी को घर के खर्च के लिए कुछ रकम की जरूरत थी। वो एक मोती लेकर जोहरी की दुकान पर पहुंच गया और उसे फरोख्त कर उससे रकम ले ली। जोहरी बड़ा लालची था। उसने इतना कीमती और खूबसूरत मोती देखा तो वो हैरान हो गया और अब्दुल्ला से पूछने लगा कि क्या तुम्हारे पास ऐसे और भी मोती हैं। अब्दुल्ला बेचारा सीधा साधा और नेक था। वो कहने लगा कि हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत से मोती हैं। लालची जोहरी ने अब्दुल्ला को तो कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, अरे लोगो, इसे पकड़ लो, यही वो आदमी है जिसने मलका के मोती चुराए हैं। जब अब्दुल्ला ने जोहरी की ये बातें सुनी तो वो हैरान हो गया। इससे पहले कि अब्दुल्ला कुछ कहता या करता, लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ बांधकर उसे खींचते हुए बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। लालची और बेईमान जोहरी अब्दुल्ला की रस्सी पकड़े आगे आगे चल रहा था। बादशाह के दरबार में पहुंचकर जोहरी ने बड़े फखरियाना अंदाज में कहा कि बादशाह सलामत, हम चोर को पकड़ लाए हैं। बादशाह ने ये सुना तो बादशाह हैरान होकर पूछने लगा कि कैसा चोर। जोहरी बोला कि हजूर, वही चोर जिसने मलका के मोती चुराए हैं। बादशाह हैरान होकर बोला कि क्या मलका के मोती चोरी हो गए हैं, लेकिन हमें इस बात की खबर तक नहीं। जोहरी बोला कि बादशाह सलामत, ये बात तो हर किसी को पता है कि मलका के कीमती मोती और उनका हार चोरी हो गया है। बादशाह ने जब ये सुना तो हैरान होकर अपने वजीर की तरफ देखा और पूछा कि क्या ये बात सच है, और एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाओ और मलका को लेकर आओ। मलका ने जब ये सुना तो मलका भी वहाँ पर आ गई। मलका आई और बोली, आलिम पना, आपने हमें तलब फरमाया है। बादशाह बोला कि हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे मोती और तुम्हारा हार चोरी हो गया है, क्या ये सच है? मलका ने जवाब दिया कि आलिम पना, वो तो मिल भी गए, मैं उन्हें एक जगह पर रखकर भूल गई थी, लेकिन वो मुझे वापस मिल गए। बादशाह ने जब ये सुना तो बादशाह जोहरी से कहने लगा कि अब सच सच बताओ कि ये शख्स कौन है और ये क्या मामला है। जोहरी ने बादशाह को वो मोती दिखाया जो अब्दुल्ला ज़मीनी उसके पास लेकर आया था। बादशाह ने मोती को देखा तो वो बहुत अनमोल मालूम हो रहा था। बादशाह ने अब्दुल्ला से पूछा कि ऐ माहीगीर, तू सच सच बता कि ये मोती तेरे पास कहाँ से आया। अब्दुल्ला बोला, बादशाह सलामत, मेरा एक दोस्त है जिसने एक बहुत बड़ी टोकरी मुझे ऐसे मोतियों से ला कर दी है। जब बादशाह ने ये सुना तो बादशाह के भी दिल में लालच आ गया और दिल ही दिल में ख्याल करने लगा कि किसी तरह से ये मोती हासिल करने चाहिए। वो अब्दुल्ला से कहने लगा कि तुम इस काबिल हो कि मेरे मुसाहिबों में शामिल हो जाओ, क्या तुम मेरे वजीर बनोगे? अब्दुल्ला ने कुछ देर तो दिल में सोचा कि बादशाह का वजीर बनना तो बड़ी इज्जत की बात है, लेकिन मैं महल में रहने के बाद खुदा को भूल जाऊंगा। वो कुछ देर सोचने के बाद बादशाह से बोला, आलिम पना, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि मैं आपका वजीर बन जाऊं। अब बादशाह ने जोहरी की तरफ देखा और कहा, तुमने झूठ बोला है और इस सच्चे आदमी पर तुमने इल्जाम लगाया है, लिहाजा इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और बादशाह ने हुक्म दिया कि इस जोहरी को कोड़े लगाए जाएं। फिर कुछ दिनों बाद अब्दुल्ला बादशाह का वजीर मुकर्रर हो गया और अब्दुल्ला और उसके बीवी बच्चे महल में रहने लगे। वक्त के साथ साथ अब्दुल्ला ने अपने पुराने वक्त को भुला दिया था और बादशाह की खिदमत करने लगा था। अब्दुल्ला की कोशिशों से बादशाह के खजाने में बड़ा इजाफा हो रहा था और बादशाह भी अब्दुल्ला से बहुत खुश था और उसकी बड़ी इज्जत करता था। अब्दुल्ला के बड़े लड़के और बादशाह की शहजादी की आपस में दोस्ती हो गई। वो दोनों ही एक साथ रहते और बाग में टहलते रहते। अब्दुल्ला और बादशाह ये सोचते थे
कि उन दोनों की शादी हो जाए। इस इज्जत और मर्तबे के बावजूद जो अब्दुल्ला को दरबार में हासिल था, इसने अपने दोस्त समंदरी अब्दुल्ला को भुलाया नहीं था। वो हर रोज सुबह सवेरे समंदर के किनारे पर जाता और फलों से भरी हुई एक टोकरी उसके लिए ले जाता। वो समंदर के किनारे पहुंचकर उसे आवाज लगाता और अब्दुल्ला दरियाई उसकी आवाज सुनकर समंदर की सतह पर निकल आता और फिर दोनों काफी देर तक आपस में बातें करते। और जब कुछ देर गुजर जाती तो अब्दुल्ला दरियाई उसे खुदा हाफिज कहकर समंदर में चला जाता और अब्दुल्ला जमीनी महल वापस आ जाता। एक रोज वो इसी तरह दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि अब्दुल्ला समंदरी ने अब्दुल्ला जमीनी से पूछा, क्या ये सच है कि तुम बादशाह के वजीर बन गए हो? अब्दुल्ला जमीनी ने जवाब दिया कि हाँ, बादशाह बहुत नेकदिल आदमी है। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन महल जरूर आओगे और बादशाह से मिलकर खुश हो जाओगे। अब्दुल्ला दरियाई कहने लगा कि नहीं मेरे दोस्त, ये मुमकिन नहीं, मैं पानी से बाहर जमीन पर जिंदा नहीं रह सकता। और फिर वो अब्दुल्ला जमीनी को कहने लगा कि मेरे दोस्त, तुम बादशाह की ज़ाहिरी हालत को देखकर धोखा न खाओ। हो सकता है वो भी दूसरे बादशाहों की तरह लोगों की दौलतों पर कब्जा करना चाहता है ताकि उसके खजाने और अयाश में किसी किस्म की कोई कमी न हो, और वो तुम्हारे लिए इसी वजह से इज्जत से पेश आता है और तुम्हारी दौलत हथियाने के चक्कर में है। इसलिए मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ कि तुम इन सबको छोड़ो और मेरे साथ समंदर में रहो। अब्दुल्ला ज़मीनी कहने लगा कि भला मैं समंदर में कैसे रहूंगा, मैं तो डूब जाऊंगा और मर जाऊंगा। अब्दुल्ला दरियाई बोला कि तुम समंदर में नहीं डूबोगे। मेरे पास एक ऐसी दवा है कि अगर कोई आदमी उसे अपने जिस्म पर लगा ले तो वो समंदर पर तैरने लगता है। वो उसकी तय पर सो सकते हैं, उस पर चल फिर सकते हैं और खा भी सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से रह सकते हैं कि जैसे जमीन पर रहते हैं। अब्दुल्ला ने जब ये सुना तो कहने लगा कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। अब्दुल्ला दरियाई ने जब ये देखा कि उसका दोस्त मान गया है तो वो कहने लगा कि तुम कुछ देर यहाँ पर ठहरो, हो सकता है मुझे उसे लाने में थोड़ा टाइम लग जाए, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। मैंने शायद उसे सब्ज कश्ती के पास रखा था, तुम जरा मेरा इंतजार करो, मैं उसे ढूंढ कर लेकर आता हूँ। वो ये कहकर समंदर की तह में गायब हो गया और अब्दुल्ला जमीनी समंदर के किनारे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि समंदर का सफर कैसा होगा, तरह तरह की मछलियाँ देखने को मिलेंगी और बहुत मजा आएगा। लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि कहीं मैं समंदर में डूब ही न जाऊं। उसे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसका दोस्त अब्दुल्ला दरियाई समंदर की सतह पर उभरा और उसके हाथ में एक खूबसूरत सी शीशी थी और वो उसे अब्दुल्ला को देते हुए कहने लगा कि ये लो, इस दवाई को अपने जिस्म पर मल लो, इसे लगाने के बाद बगैर किसी डर के समंदर में कूद जाओ। अब्दुल्ला जमीनी ने वो तेल अपने जिस्म पर मल लिया और अपने दोस्त के साथ समंदर में कूद गया। वो आसानी से अपने दोस्त के साथ तैरता हुआ समंदर की तह में पहुंच गया। वहाँ एक अजीबोगरीब मखलूक आबाद थी। दरियाई मछलियों के अलावा तरह तरह की खूबसूरत मछलियाँ, आबी सितारे, मुख्तलिफ किस्म के आबी पौधे और इमारतें थी। हर तरफ खामोशी थी और हर चीज रोशन थी और दरियाई इंसानों के घर चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। अब्दुल्ला जमीनी को आबी मखलूक के बादशाह की खिदमत में ले जाया गया। बादशाह भी अजीबोगरीब किस्म की मखलूक थी। उसने अपना पूरा जिस्म कीमती हीरों और मोतियों से सजाया हुआ था। बादशाह ने देखा कि एक जमीनी मखलूक समंदर की तह में चल रही है तो बादशाह कहकहे लगाकर हंसने लगा और उसके दरबारी भी हंसने लगे क्योंकि उन्होंने कभी इंसान को नहीं देखा था। बादशाह ये देखकर कहने लगा कि अरे देखो, ये कैसा अजीब इंसान है, ये अपने निचले हाथों से चल रहा है। अब्दुल्ला जमीनी को बादशाह का इस तरह से हंसना और उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। वो बादशाह को देखकर बोला कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो, और आप जिन्हें मेरे निचले हाथ समझ रहे हैं वो मेरे पैर हैं। जमीन पर रहने वाले सभी लोगों के पैर ऐसे ही होते हैं। आप समंदर में रहते हैं, इसीलिए अल्लाह पाक ने आपको समंदर के काबिल ही बनाया है। मैं जमीन पर रहता हूँ, इसलिए मेरा जिस्म उसी के मुताबिक बनाया है। इसमें हंसने या मजाक उड़ाने की कौन सी बात है? आपकी दुम है और इसमें आपकी खूबसूरती है। मेरी दुम होती तो मैं इसमें तमाशा लगता। अब्दुल्ला दरियाई को अपने बादशाह और दरबारी साथियों का यूं उसके जमीनी दोस्त का मजाक उड़ाते हुए देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो शर्मिंदा होकर अपने जमीनी दोस्त अब्दुल्ला से बोला कि चलो मेरे दोस्त, वापस चलते हैं। जब वो दोनों समंदर की सतह पर वापस आए तो अब्दुल्ला दरियाई शर्मिंदा होकर अपने दोस्त से कहने लगा, मेरे दोस्त, अब तुम अपनी दुनिया में वापस जाओ और मैं अपनी दुनिया में समंदर में वापस जा रहा हूँ। हो सकता है कि आज के बाद हमारी कभी मुलाकात ना हो। अब्दुल्ला जमीनी हैरान होकर बोला, भला वो क्यों? अब्दुल्ला दरियाई बोला कि बादशाह और मेरे समंदरी दरबारियों ने
आपके साथ जो सलूक किया है उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मुझे उनके साथ रहना गवारा नहीं। अब मैं भी यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा और उनसे दूर होकर अकेला रहकर जिंदगी गुजारूंगा। अब्दुल्ला ज़मीनी बोला कि अगर ऐसी बात है तो आओ हम दोनों जमीन पर जिंदगी गुजारें। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। अब्दुल्ला दरियाई बोला कि नहीं मेरे दोस्त, ऐसा मुमकिन नहीं। मैं समंदर की मखलूक हूँ और समंदर ही में रह सकता हूँ। तुम अपने बीवी बच्चों और बादशाह के पास चले जाओ। खुदा हाफिज। ये कहकर अब्दुल्ला दरियाई ने समंदर में गोता लगाया और वहाँ से गायब हो गया और उसके बाद वह फिर कभी साहिल पर नजर नहीं आया और अब्दुल्ला ज़मीनी उसे भूला नहीं था। वो हर रोज फलों की टोकरी लेकर समंदर के किनारे पर जाता और अब्दुल्ला दरियाई को आवाज लगाता। कुछ देर वहाँ बैठकर उसका इंतजार करता और जब वो वहाँ ना आता तो खामोशी के साथ वापस आ जाता। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।